Hello my dear students, welcome back to your science class. Today we are going to discuss part 2 of this chapter, respiration in organisms. In part 1 we did the introduction part, and this particular video we are going to discuss about what are the differences between aerobic and anaerobic respiration, what is breathing rate, and how breathing takes place, and then we will have some assignments. So let's start with the differences between aerobic and anaerobic respiration. Separately we have discussed about aerobic respiration and anaerobic respiration. Now we are going to compare, now we are going to differentiate between aerobic and anaerobic respiration. You know that aerobic respiration takes place in the presence of oxygen, and anaerobic respiration does not need oxygen. There is complete breakdown of food in aerobic respiration, and in anaerobic respiration there is partial breakdown of the food, means there is partial breakdown of the food items. What is the end product? End product in aerobic respiration is carbon dioxide and water, and in case of anaerobic respiration end products are alcohol and carbon dioxide. When anaerobic respiration is taking place in muscles, then instead of carbon dioxide, lactic acid will be produced, and you know this is the reason when we are doing vigorous exercise, when we are working hard and our muscles are involved, that time we feel pain, and I discussed in previous video that why we are getting pain in our muscles when we are working hard. So that is because of lactic acid. And the last things that we are going to discuss, in aerobic respiration there is high amount of energy produced, and comparatively in anaerobic respiration there is less amount of energy is produced. And you can say why? Because you can see that here is complete breakdown of the food and here is partial breakdown of the food materials. So we are moving forward. Now we are going to discuss what is breathing. You know, we are breathing regularly, we are breathing continuously to survive in this world. And what is breathing? We are going to discuss it. So it is the process in which air rich in oxygen taken inside and air rich in carbon dioxide is given out with the help of respiratory organs. You can say this breathing involves two steps. So what are these two steps? First step is inhalation and second step is exhalation. So in inhalation we are taking in oxygen and we are giving it out by the process of exhalation. So this inhalation and exhalation are the two steps which are involved in breathing process. Now what is breathing rate? You know, the number of time a person breathes in a minute is termed as breathing rate, and commonly you can say that an adult human being inhale 15 to 18 times in a minute, and you know this is average breathing rate. It changes even men and women also. When we are doing variety of work, our breathing rate changes accordingly. You can see in this picture, when a person is sleeping, breathing rate will be different. When a person is walking, breathing rate will be different. When we are reading, breathing rate will be different. When we are playing, then it will be different. When we are working, it will be different. So breathing rate depends what is the amount of energy required in our body. So if you need more energy, you need to breathe faster. So breathing rate in a person is not always constant.
it changes according to the oxygen requirement of the body. Breathing rate is somewhat faster in women. ये थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा in comparative to men. तो ऐसा क्यों होता है, आप इसको खोजने का प्रयास करेंगे. If you are getting answer of this particular question, you can tell me in live class or you can comment. Okay, so breathing rate is slowest while sleeping, because when we are sleeping we need less energy, and maximum when we are doing heavy exercise like running, weightlifting, etc. So that time we need more energy. So that's why for more energy we need more oxygen, and for more oxygen we need to breathe faster. So this increases our breathing rate. So increased breathing rate provide a greater amount of air entry into the lungs, hence the blood can absorb oxygen at a faster rate. And जब भी हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ता है तो जो हमारे अंदर फूड का ब्रेकडाउन होता है वो बढ़ जाता है, और जब फूड का ब्रेकडाउन बढ़ जाता है तो वी गेट मोर एनर्जी, एंड दैट एनर्जी वी कैन यूटिलाइज फॉर आवर वर्क. सो ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज ब्रीथिंग रेट कैन इंक्रीज टू 25 टाइम्स पर मिनट. वहाँ हमने देखा था नॉर्मली इट इज़ 15 to 18 टाइम्स, लेकिन जब आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो इट इंक्रीजेज आवर ब्रीथिंग रेट. एंड जब हम व्हेन वी फील ड्राउजी, स्लीपी और टायर्ड, वी yawn. और व्हाट इज yawn? ओपन आवर माउथ wide to take a long and deep breath of air. Because of breathing rate slows down and body does not receive sufficient oxygen. जब आप यान क्यों लेते हैं? जब आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उस समय ऐसा लगता है कि थके हुए हैं और कुछ करने का मन नहीं कर रहा है. तो जैसे ही आप यान लेते हैं, ज़्यादा अमाउंट होता है वो ऑक्सीजन का आपके अंदर जाता है, और फिर से आपको एक फ्रेशनेस महसूस होती है. तो ये होता है ब्रीथिंग, और इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कब हमारी ब्रीथिंग फास्ट होगी, कब स्लो होगी. मैंने बता दिया, जब आप ज़्यादा काम करने वाले होते हैं, मेहनत वाला काम करने वाले होते हैं तब, या कर रहे होते हैं, तो आपकी जो ब्रीथिंग रेट होती है वो बढ़ जाती है. जब आप सो रहे होते हैं या कुछ ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसमें कि आपको कम एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो आपकी ब्रीथिंग रेट जो होती है वो कम हो जाती है. तो ऑन एन एवरेज ये फिक्स रहती है एक तरीके से, और जैसे आप हैवी या कोई हल्का काम करते हैं उस पर आपकी ब्रीथिंग रेट जो होती है वो चेंज होती रहती है. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग. कैसे होती है ब्रीथिंग हमारी बॉडी में, एक्चुअली व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग ब्रीथिंग. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग कैन बी अंडरस्टूड बाई फॉलोइंग पॉइंट्स. क्या क्या पॉइंट्स हैं? नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स. व्हेन वी इनहेल एयर, it passes through our nostrils into the nasal cavity. From the nasal cavity the air reaches our lungs through windpipe. देखिए, जैसे आप ये लाइंस पढ़ रहे होते हैं वैसे आप फील कर सकते हैं. इफ़ यू स्टार्ट फीलिंग हाउ एयर इज गोइंग इनसाइड योर लंग्स, आपको ये महसूस होगा. देन यू कैन रिलेट. आप इसको अपने से जोड़ के पढ़िए और लिखने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए कि कैसे जब हम ब्रीथ करते हैं तो हवा कैसे हमारे नॉस्ट्रिल्स से, नॉस्ट्रिल्स का मतलब जो आपके नाक के छेद हैं उससे कैसे आपके अंदर हवा जाती है, फिर वो किस तरीके से आपके विंड पाइप से होते हुए और आगे बढ़ते हुए आपके लंग्स में जाती है. लंग्स कहाँ है भाई? आपके चेस्ट कैविटी में आपके लंग्स हैं. एंड यू हैव वन पेयर ऑफ लंग्स, मतलब दो लंग्स हैं आपके, राइट एंड लेफ्ट, मतलब वन पेयर हैं. और वो कैविटी कहाँ है? चेस्ट कैविटी में ही आपके लंग्स होते हैं. क्यों? क्योंकि आपको पता है लंग्स आर वेरी डेलिकेट, बहुत ही लचीले होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, और दे नीड हाई सिक्योरिटी. और जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है उसको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है, उसको प्रोटेक्ट करती है. तो
अगर आप ये फील करेंगे कि कैसे हवा अंदर आपके जा रही है और कैसे आप उसे अपने नॉस्ट्रिल से दोबारा बाहर निकाल रहे हैं, तो आपको एक ट्रैक का पता चलेगा, उस पाथ का पता चलेगा, उस पाथवे का पता चलेगा कि कैसे आपके अंदर हवा जा रही है और कैसे ये वापस आ रही है। तो अ लार्ज मस्कुलर सीट कॉल्ड डायफ्राम फ्रॉम फॉर्म द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी। अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि व्हाट इज डायफ्राम एंड वेयर इट इज़ फाउंड। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से कि वेयर इज डायफ्राम, एंड आप ये देखिए, दिस इज सॉरी दिस इज द डायफ्राम। ये जो आप लाइन देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, दिस इज डायफ्राम, यहाँ आपको दिखाया गया है। तो ये क्या काम करती है? ये फ्लोरिंग का काम करती है। किसको? जो चेस्ट कैविटी की जो फ्लोरिंग है वहाँ पे आपको मिलता है ये डायफ्राम। इसके कैसे ये एक्सपैंड होती है, कैसे ये रिलैक्स होती है, आपको आगे मैं बताऊंगा। तो सी द नेज़ल कैविटी, जहाँ से आपको हवा आपके अंदर जाती है और वो आपके विंड पाइप से, देखिए फायरिंग्स, ट्रैकिया, ट्रैकिया जो है नीचे आई, नीचे आने के बाद आपको लंग्स दिखाई दे रहे हैं। ये लंग्स, यू नो, वन पार्ट इज कवर्ड विथ चेस्ट कैविटी, इट इज शोइंग इन योर डायग्राम। एक्चुअली ऐसा नहीं होता जैसा आपको दिखाया गया, ये आपको समझाने के लिए कि चेस्ट कैविटी के अंदर जो लंग्स होता है, फिर लंग्स के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, इसलिए आपको यहाँ सेक्शन दिखाया गया है एक तरफ कट करके। तो आप चाहें तो और भी डायग्राम अच्छे से अपनी बुक से देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये दिखाया गया कि जो चेस्ट कैविटी है इसके अंदर लंग्स कैसे प्रोटेक्टेड होते हैं, और एक तरफ आप देखिए कि लंग्स के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो आप यहाँ अच्छे से देख सकते हैं कि कैसे जो है ट्रैकिया जो है वो छोटे छोटे, ये ब्रोंकाई और ये छोटे ये ब्रोंकियोल, और यहाँ पे ये लास्ट में आपको ब्लैडर्स दिखाई देंगे। अभी ये तो छोटा है। तो ये स्ट्रक्चर जो है आपको चेस्ट कैविटी के अंदर दिखाई देता है। छोटे छोटे आप देखिए ब्रांचेस, जैसे जैसे पेड़ के ब्रांच होते हैं उस तरीके से आपको यहाँ डिवीज़न दिखाई दे रहा है। और यही होता है जहाँ पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, जहाँ पर हमारा ब्लड ऑक्सीजन रिसीव करता है। तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग ब्रीथिंग एंड दिस इज़ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अभी अभी अगर आप देखें कि एक नया जो टॉपिक है स्मोकिंग एंड हाउ इट अफेक्ट्स एंड वाई स्मोकिंग इज़ हार्मफुल, we will discuss few things about smoking. So as I told you that lungs are very delicate organs and essential part of breathing, thus this keeps us alive. आपको पता है अगर लंग्स ना हो तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, और अब अगर सांस नहीं ले पाएंगे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो हमें जिंदा रहने के लिए सांस लेना ज़रूरी है और सांस लेने के लिए लंग्स ज़रूरी हैं। तो if we are smoking, if someone is smoking, this is very injurious for them. Why it is injurious, we will see. Smoking tobacco in form of bidi or cigarette or cigar damage our lungs gradually and causes ill health. How it causes ill health, we will see. While smoking, smoke along with chemicals present in tobacco enters our body. These chemicals present in tobacco damage the lungs in many ways, like breathing becomes difficult, causes lung cancer, heart diseases, etc. When smoke goes inside, and these smokes contains chemical because it is coming from tobacco. तो आपको पता है टोबैको इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ। किसी भी तरीके से अगर हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो ये हमें नुकसान पहुंचाता है, और कितना नुकसान पहुंचा सकता है कि ये हमें लंग कैंसर दे सकता है, हार्ट कैंसर दे सकता है, और भी बहुत सारे डिजीज़ दे सकता है। तो स्मोकिंग आल्सो अफेक्ट पीपल अराउंड स्मोकर्स एज दे आल्सो इनहेल air containing tobacco. This is called passive smoking. This is very very important for all of us to know कि पैसिव स्मोकिंग, यू नो, कोई भी इस बात को हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग का मतलब ये है कि इवन दो यू आर नॉट स्मोकिंग बट यू आर कमिंग इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ स्मोकर्स, then these smoke will enter in your body and it will affect you like it is affecting the person who is smoking.
तो आप कर नहीं रहे हैं, आप स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उनके कांटेक्ट में आ रहे हैं, आप उनके पास आ रहे हैं, आप वो एयर जो होती है, स्मोक जो होती है आपके अंदर जा रही है, तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। तो क्या करना है, इसके लिए ध्यान रखना है कि पहले तो किसी को सिगरेट पीने से मना करिए। अगर सामने वाला नहीं मानता है तो आप उस एरिया को छोड़ के किसी फ्रेश एरिया में चले जाइए, क्योंकि आपको नुकसान हो सकता है। तो ध्यान रहे कि स्मोकिंग किल्स, तो कभी भी स्मोकिंग को प्रमोट नहीं करना है। अगर कोई स्मोक कर रहा है तो उससे आपको दूरी बनानी है। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, देन वी विल हैव good health. So the mechanism of breathing involves movement of diaphragm and rib cage. The complete process, how we can see that the complete process is first two, it is complete, you can see that you can divide this process into two part, inhale and exhale. तो यहाँ हम थोड़ा सा और देखते हैं कि what happens during inhale and exhales and how diaphragm moves, how rib cage moves. So first process, when we breathe in or inhale, two processes occurs together. What are these two processes? The muscle between ribs contract, causing the rib cage move upward and outward, while the diaphragm contracts and moves downwards. क्या होता है, जब आप सांस अपने अंदर लेते हो तो आपके जो चेस्ट कैविटी वो आपको लगता है ना, आपकी जो चेस्ट हो वो फूल रही है, और फूलने से आपको महसूस होता है कि बाहर आ रही है, and you can feel it. Just take a deep breath, and if you breathe you will feel that it is expanding. आपका जो चेस्ट कैविटी है वो फूल रहा है, बढ़ रहा है, बाहर की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये होता है। अभी आप देखिए इस डायग्राम में अच्छे तरीके से कि जो पहला डायग्राम है आप देख रहे हैं कि जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ आ रहा है, और जो रिब्स जो हैं वो बाहर की तरफ आ रही हैं जब आप एयर अपने अंदर लेते हैं। तो ये होता है, और इसी का जस्ट अपोजिट होता है किसमें, एक्सहेलेशन में। तो उसको हम बाद में देखेंगे, पहले इनहेलेशन को देखते हैं कि डायफ्राम मूव्स डाउन, डायफ्राम मूव्स डाउन, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ से ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये दिखाया गया एरो में। ये चीज़ें जो है ये बाहर की तरफ आ रही हैं, मतलब आपको एक्सपैंड होती दिखाई दे रहे हैं। कब, जब हवा आपके विंड पाइप से, आपकी नेजल कैविटी से अंदर जा रही होती है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन। तो इनहेलेशन में यही होता है। क्या होता है, दिस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब केज एंड डायग्राम respectively increases the space in chest cavity and make it larger, इसको बड़ा बनाती है। As the chest cavity become larger, it sucks air from outside the lungs and lungs get filled up with the air and expand. जैसे ही ये चेस्ट कैविटी बड़ी होती है वैसे ही जो बाहर की हवा होती है हमारे अंदर चेस्ट में आती है और लंग्स जो होते हैं वो फैल जाते हैं। तो ये होता है इनहेलेशन का प्रोसेस। नाउ वी विल सी दैट व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग एक्सहेलेशन आर ब्रीथिंग आउट। सो व्हेन वी ब्रीथ एयर आउट और एक्सहेल द रिवर्स प्रोसेस टेक्स प्लेस। रिवर्स मीन्स जैसे यहाँ आपको एक्सपेंशन दिखाई देता है, अब यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्शन दिखाई देगा। कहाँ, चेस्ट कैविटी का। ये जो फूल रही थी वो धीरे से सिमट जाएगी। तो क्या होता है, द मसल ऑफ रिब केज रिलीज causing the rib cage to move downward and inward, नीचे की तरफ और अंदर की तरफ दिखाई जा रही है। और डायफ्राम जो होता है क्या करता है, moves upward। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डायफ्राम कैसे यहाँ पर अपवर्ड मूव होता है। कब, जब एक्सेलेशन का प्रोसेस होता है। तो चेस्ट कैविटी आपकी स्मॉल हो जाती है, यहाँ पर चेस्ट कैविटी छोटी होती है, आपको नजर आएगी। रिब्स जो होती हैं वो अंदर जाती हुई दिखाई देंगी। कब, जब एयर इज गोइंग आउट। सो दिस इज जस्ट अपोजिट टू द इनहेलेशन। दिस डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द रिब केज एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम डिक्रीजेज द स्पेस इन अवर चेस्ट कैविटी एंड मेक्स इट स्मॉलर। जैसे ही आपको ये महसूस होगा कि दिस air cavity, this chest cavity is decreasing in volume, you will feel that your nostrils are exhaling the air. कौन सी, and you know that this air is rich in carbon dioxide.
So we have seen that in this particular video what is the difference between aerobic respiration and anaerobic respiration, then what is the mechanism of breathing, what is breathing and what is the breathing rate, what is smoking, why it is harmful for us, and what is the mechanism of breathing, what is inhalation, what is exhalation and how it takes place. So this is all about your part 2. Now we'll see that what is the assignment you have to do. You have to make the notes, and what you are going to write, you have to write in your own word how movement of diaphragm takes place. इसको आप अपने शब्दों में लिखेंगे और that's all. These are the resources and thank you. जय हिंद.